Assalamu alaikum. Welcome to Verilog tutorial. Today we are going to cover the topic of implementation of logic gates in Verilog. Logic gates are the basic building blocks in any digital design. Some of the basic logic gates which we study are AND gates, OR gates, NOR gates, XOR gates, and NAND gates, and so on. These are some basic logic gates which we use in our digital logic design to build our digital circuits. So today we are going to perform how we are going to code design our AND gate in Verilog language. So let's start with the basic theory of how the AND gates work. Okay, first let me erase all of this. Okay, so if we see how the AND gates work, so this is the symbol of an AND gate. Okay, for every AND gate there will be an inputs which we can consider A and B, and there will be an output Y. To perform the functionality of any AND gate, how we are going to check? We are going to build up a truth table. Okay. It's very obvious that on the left hand side of the truth table, we always put inputs, and on the right hand side of the truth table, we mention the outputs. So for the AND gate truth table, on the left hand side, we will be having inputs of A and B, and for the outputs, we will be having Y. So the possible combinations we can configure are number 1, 0, 0. When both our inputs are 0, we know that the AND gate's Boolean equation is A dot B. It is basically a dot product of both two numbers. So when we will going to perform a dot product on A and B, when both are zeros, so we know that the output will be a 0. Okay, going for the second input, if we change the inputs of A, it will be a 0, but we will change B into 1. So 0, 1, the dot product will be 0. Third input will be 1, 0. When we are going to perform a dot product, the answer will be again 0. Third, if we input both A and B into 1, so 1 and 1 equals to 1. So this is the truth table of an AND gate which we are going to verify when we design our AND gate in Verilog language. Okay, so this is the basic theory of how the AND gates work. So let's get moved towards the coding. Okay, all you have to do is to, okay, first let me clear this out. Okay, perfect. Okay, I hope that you have already installed the software which we have mentioned in video 1, so you are ready to go. First, what we have to do is to build up a new folder. So, okay, from now on, I will be changing my language to Urdu, so it will be very much easier to get yourself understands. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ओपन फोल्डर पे जाना है. ओपन फोल्डर पे जाके यू हैव टू मेक अ न्यू फोल्डर. ठीक है, बेसिकली वी आर परफॉर्मिंग गेट्स, सो आई विल नेम दिस फोल्डर एज अ गेट्स. ऑल यू हैव टू डू व्हेन यू क्रिएट अ फोल्डर, आप उसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर सकते हैं. डेफिनेटली आपसे परमिशन मांगेगा, डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स? यस, यू इट्स योर लैपटॉप, सो यू डेफिनेटली ट्रस्ट योर ऑथर्स. ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ देखें तो आपके पास एक गेट का फोल्डर बना हुआ आएगा. ऑल नाउ वी हैव टू डू, वी हैव टू डिजाइन अवर लॉजिक गेट्स. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक फाइल बना लेते हैं बाय क्लिकिंग ऑन अ न्यू फाइल टैब. ठीक है, आप उस फाइल को आप नाम देंगे, यकीनन इट कैन बी एनीथिंग. सो फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी हम इसको नाम दे देते हैं डिजाइन डॉट बी, विच शोज के भाई ये जो हमारी फाइल है वो हमारे डिजाइन की फाइल है. अच्छा, जैसे अभी हमने डायग्राम्स देखी थी कि इन एंड गेट हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होते हैं.
तो वेरिलॉग के अंदर आपकी कोडिंग के अंदर हम जो भी अपना कोड करते हैं वो हम एक मॉड्यूलर फॉर्म में कोडिंग करते हैं। बेसिकली हम इसको मॉड्यूलर कोडिंग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने वेरिलॉग के अंदर एक मॉड्यूल डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये हम जो भी कोडिंग कर रहे हैं या जो भी अपना डिज़ाइन बना रहे हैं वो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से लिंक होगा या इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन की गई होगी। तो अभी हमने इस मॉड्यूल का कीवर्ड यूज़ किया कि भाई मॉड्यूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आप उसके मॉड्यूल का कोई एक नाम रखते हैं, ठीक है। यकीनन वो नाम आपके डिज़ाइन से या आपके सर्किट से या जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उससे लिंक होगा। अभी हम गेट्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऑल वी हैव, हम उसको क्या नाम दे देते हैं, मॉड्यूल गेट का नाम दे देते हैं। उसके बाद आपके पास हम उनके पैरेंथेसिस आते हैं जिसमें हम पोर्ट लिस्ट को डिफाइन करते हैं कि भाई आपके इस मॉड्यूल के या इस डिज़ाइन के कितने पोर्ट्स होंगे या उनकी लिस्ट क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें, हमने जैसे अभी डायग्राम बनाई थी कि उसके एंड गेट के अंदर आपके पास 2 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो यकीनन हम उनको यहाँ पे वेरीफाई मेंशन कर रहे होंगे कि हमारे पास कौन से पोर्ट्स लिस्ट हैं। सो ए बी आर माई इनपुट्स पोर्ट्स एंड वाई इज एन आउटपुट पोर्ट्स। तो यहाँ पे मैंने उनको सिर्फ पोर्ट लिस्ट के नाम मेंशन कर दिए हैं कि भाई ये मेरे पोर्ट्स होंगे। अच्छा, नाउ क्वेश्चन अराइज कि आप किस डिज़ाइन को या आपके सिमुलेटर को या कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आपने जो ए बी एंड वाई लिखा हुआ है इसमें से कौन से एज ए इनपुट्स फीड किए जाएंगे और कौन से आपके एज ए आउटपुट्स किए जाएंगे। तो सब उसके लिए हमें इनपुट्स एंड आउटपुट्स को क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिक्लेयर इनपुट्स, ठीक है। इनपुट्स को डिक्लेयर करने के लिए द कीवर्ड वी यूज इज इनपुट। इनपुट इज द कीवर्ड जो मेंशन बताता है कि भाई ये पोर्ट जो है या ये जो वेरिएबल्स है एज ए इनपुट ट्रीट किए जा रहे होंगे, ठीक है। फ्रॉम द डायग्राम अगेन भी हमें पता है कि हमारे जो इनपुट्स होंगे वो क्या होंगे, ए एंड बी। सो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देते हैं, ए एंड बी, एंड उसके बाद सेमीकोलन। सिंटेक्स का बड़ा ध्यान रखिएगा, सिंटेक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप सिंटेक्स नहीं लगाएंगे तो यकीनन आपको कंपाइलेशन पे वो आपको सिंटेक्स एरर शो करेगा, ठीक है। इनपुट्स डिक्लेयर करने के बाद ऑल वी हैव टू, हमें क्या करना है कि हमें आउटपुट्स को डिक्लेयर करना है। जिस तरह हमारे पास इनपुट का कीवर्ड है इसी तरह हमारे पास आउटपुट का कीवर्ड होगा और हमारा जो आउटपुट है वो है y, ठीक है। अब इसके बाद जब आपने एक मॉड्यूल हमने स्टार्ट किया हुआ है तो यकीनन हमें उसको एंड मॉड्यूल भी करना पड़ेगा ताकि हम बता सके कि इस लाइन से लेकर यहाँ तक की जो भी कोड है वो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का हिस्सा है। तो जिस तरह हमारे पास मॉड्यूल स्टार्ट करने के लिए मॉड्यूल का कीवर्ड यूज किया जाता है, इसी तरह मॉड्यूल को एंड करने के लिए हम एंड मॉड्यूल का कीवर्ड यूज करते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने अपने डिजाइन के सिर्फ इनपुट्स एंड आउटपुट्स को डिक्लेयर किया है, उसकी मैंने फंक्शनैलिटी यहाँ पे डिफाइन नहीं की। तो हमें उसके लिए उसकी फंक्शनैलिटी को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, वेरिलॉग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिंग्स होती हैं। आज जिस पे हम फोकस कर रहे होंगे दैट विल बी गेट लेवल मॉडलिंग, ठीक है। गेट लेवल मॉडलिंग के अंदर बेसिकली हम करते हैं क्या है कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन गेट्स अवेलेबल होते हैं जो यूनिवर्सल गेट्स हैं। जैसे अभी हमने कुछ गेट्स की एग्जांपल देखी थी, नैंड एंड हो गया, और हो गया, जोर हो गया, नैंड हो गया। ये सारे आपके बेसिक गेट्स अवेलेबल थे जिनके बिल्ट इन फंक्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो हम उनको यूज करते हुए हम अपने डिजाइन को कोड कर रहे होंगे। अच्छा, बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर होते किस तरह से, तो सबसे पहले आपके पास उनके फंक्शन का नेम आता है। अच्छा, ये सारा मैं आपको उसके सिंटेक्स बता रहा हूँ कि बिल्ट इन फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया जाता है। फंक्शन का नेम होता है, उसके बाद उनकी पोर्ट लिस्ट आती है। अच्छा, पोर्ट लिस्ट के अंदर अगर आप देखें कि फंक्शन इनके बिल्डिंग फंक्शन की जो पोर्ट लिस्ट होती है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है कि सबसे पहले आपके पास उनके आउटपुट होते हैं और उसके बाद उनके इनपुट्स को डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एंड गेट को यूज करना चाह रहा हूँ, एंड गेट के बिल्डिंग फंक्शन को यूज करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे फंक्शन का नेम क्या होगा, एंड गेट होगा। और जैसे मैंने बात की कि सबसे पहले आपके पास उनके आउटपुट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, तो हमारा जो मॉड्यूल का डिजाइन का जो आउटपुट है वो क्या है, वाई। तो हम उस इनके आउटपुट पोर्ट्स को हमारे वाई के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, वाई, और उसके बाद उनके इनपुट्स। तो हमारे डिजाइन के जो इनपुट्स क्या हैं, ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद आप उसको डाल देंगे सेमीकोलन। सो दिस इज द गेट लेवल मॉडलिंग कि आपने एंड गेट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। व्हाट इफ कि अगर आप कहते हैं कि मैं एंड गेट की जगह और गेट डिजाइन करना चाह रहा हूँ, तो और गेट के लिए ऑल यू हैव टू डू, आप और गेट के फंक्शन को डिजाइन करेंगे एंड सेम आपके मॉड्यूल के जो भी आउटपुट्स हैं कि वाई है, उसके बाद ए कॉमा बी आर माई इनपुट्स। तो आप इस तरह और गेट को भी यूज कर सकते हैं एंड मैनी अदर गेट्स अगर आप उसको यूज करना चाहें तो आप उसको डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं।
ठीक है, नाउ वी आर डन विद अवर डिजाइन मॉड्यूल। तो ये हमारी अभी एंड गेट का चौथी एग्जांपल है। तो हमारी यहाँ पे डिजाइन की जो मॉडलिंग है वो यहाँ पे हमारी एंड हो जाती है। नाउ वी ऑल हैव टू डू कि हमें इसकी एक टेस्ट बेंच डिजाइन करनी पड़ेगी। टेस्ट बेंच का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले से हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बेसिकली अगर आपके पास जैसे मैंने बोला कि मेरा डिजाइन है, तो दिस डिजाइन विल बी अ बॉक्स। ओके, दिस इज माई डिजाइन। यकीनन इस डिजाइन के जैसे हमने जो इनपुट डिक्लेयर किए हैं, ये हमारा एक इनपुट है ए, ये हमारे इनपुट है बी, एंड दिस इज अवर आउटपुट वाई। अब इसको टेस्ट करने के लिए कि आइदर दिस डिजाइन वर्क परफेक्टली और नॉट, हम इसके अराउंड एक टेस्ट बेंच डिक्लेयर करते हैं। टेस्ट बेंच विल बी द टॉप मॉड्यूल ऑफ माई डिजाइन। टेस्ट बेंच का काम क्या होगा कि उसके अंदर उसके मल्टीपल काम्स होंगे। सबसे एक नंबर वन कि हम उसको अपने डिजाइन के अंदर यहाँ से इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे। हमें यकीनन हमने जो ट्रुथ टेबल वेरीफाइड किया था कि एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है, उनके इनपुट्स हम इस टेस्ट बेंच के थ्रू अपने डिजाइन में दे रहे होंगे, और उसका जो आउटपुट है हम उसको यहाँ पे मॉनिटर कर रहे होंगे, नंबर वन। दूसरा काम क्या है कि उसकी टेस्ट बेंच के अंदर आपको अपने डिजाइन जिसको टेस्ट करना है, आपको उसको कॉल करवाना पड़ेगा। जिस तरह आप किसी फंक्शन, बड़े फंक्शन के अंदर छोटे फंक्शंस को कॉल करवाते हैं ताकि उसके ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकें, इसी तरह हम टेस्ट बेंच के अंदर अपने डिजाइन को कॉल करवा रहे होंगे। ये हो गया इसका फंक्शन नंबर 2। थर्ड फंक्शन ये होगा कि वो टेस्ट बेंच का ये काम है कि आपके जो वाई के जो सिग्नल्स आ रहे हैं, वो आपको उसको विजुअलाइजेशन वाले फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके दे। वो किस तरह से होगा, इसको हम मजीद हम अपनी कोडिंग के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है टेस्ट बेंच डिजाइन करने का। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, लेट मी erase all of this. ठीक है, अच्छा, जिस तरह हमने अपने डिजाइन की फाइल बनाई थी, सेम वॉल वी हैव टू डू कि हमें यहाँ पे एक टेस्ट बेंच की फाइल भी हमारे पास हमें बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये जरूर रखिएगा कि आप जो भी वेरिलॉग की फाइल बनाते हैं उसके अंदर हम .v एक्सटेंशन जरूर लिखते हैं। .v एक्सटेंशन हेल्प द कंपाइलर टू अंडरस्टैंड दैट द फाइल बिलोंग्स टू द वेरिलॉग कोडिंग। ठीक ठीक है, जिस तरह हमने डिजाइन के अंदर मॉड्यूल बनाया था, इसी तरह हम टेस्ट बेंच के अंदर भी अपना कोई एक मॉड्यूल बना रहे होंगे, क्योंकि हर चीज यहाँ पे होगी वो मॉड्यूलर कोडिंग के अंदर होती है। तो लेट्स डिक्लेयर द मॉड्यूल। जैसे हमने अपने डिजाइन के अंदर किसी एक मॉड्यूल को नाम दिया था, तो हम यहाँ पे भी अपने टेस्ट बेंच के मॉड्यूल को भी कोई ना कोई नाम दे रहे होंगे। टीबी विल बी द शॉर्ट फॉर्म फॉर द टेस्ट बेंच, सो आई विल प्रेफर कि आप उसको टीबी यूज करें, जो आप खुद ही मेंशन करते थे कि भाई ये टेस्ट बेंच का मॉड्यूल है। अच्छा, टेस्ट बेंच के अंदर अगर अभी आपने जैसे डिजाइन डायग्राम देखी है, तो उसके अंदर मैंने कहीं कोई टेस्ट बेंच के इनपुट्स डिक्लेयर नहीं किए थे, ना ही कोई आउटपुट पोस्ट बनाई थी, क्योंकि टेस्ट बेंच के अंदर कोई इनपुट्स नहीं आते, तो हम उसके जो पैरेंथेसिस है या जो पोर्ट लिस्ट है वो हम उसको एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपका टेस्ट बेंच स्टार्ट हुआ है तो यकीनन वो एंड भी होगा, तो एंड स्टार्ट मॉड्यूल एंड मॉड्यूल आर द कीवर्ड्स। अच्छा, सबसे पहले जो हमें काम करना है, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करते हैं कि हम अपने डिजाइन को कॉल करवा लेते हैं। ठीक, डिजाइन को हम कॉल किस तरह से करवाएंगे, यानी कि बेसिकली हम इसको दूसरे अल्फाज में बोलूं तो हम इसको कहते हैं मॉड्यूल इनिशिएशन। कि आप मॉड्यूल को यहाँ पे इनिशिएट कर रहे होते हैं, कि आपने जो भी डिजाइन बनाया है आप उस मॉड्यूल को यहाँ पे इनिशिएट कर रहे होते हैं। तो इनिशिएट करने का जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले क्या आता है कि भाई आपके पास आपके मॉड्यूल का नाम जो आपने रखा हुआ है, डिजाइन मॉड्यूल का नाम, उसके बाद कोई भी उसको यूजर नेम आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। सबसे पहले मॉड्यूल का मॉड्यूल नेम आता है, उसके बाद आपके पास यूजर नेम जो भी आप उसको प्रोवाइड करते हैं, एंड देन इट्स सिग्नल्स। आप उसके मॉड्यूल के जो भी आपके इंटरफेस सिग्नल्स हैं हम उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, किस तरह वो हम नीचे देखते हैं कि सबसे पहले हमने अपने डिजाइन का नाम क्या रखा था, गेट। तो हम इसको काम कॉल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू गेट। यकीनन अब इसका कोई यूजर नेम है तो हम इसको नाम दे देते हैं DUT। DUT स्टैंड्स फॉर डिजाइन अंडर टेस्ट, कि हम अपने इस गेट के मॉड्यूल को टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम इसको लिख देते हैं डिजाइन अंडर टेस्ट। यकीनन आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी वी विल यूजिंग DUT डिजाइन अंडर टेस्ट। अच्छा, उसके बाद मैंने बात की कि हमें सिग्नल्स के नाम आएंगे, तो हमारे डिजाइन के अंदर जो सिग्नल्स थे वो कौन कौन से थे, एक ए था। अच्छा, डिजाइन्स को मॉड्यूल को इनिशिएट या कनेक्ट करने के लिए हम ये डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं विद सिग्नल नेम के डॉट ए विल बी द सिग्नल नेम ऑफ माय डिजाइन, और डॉट ऑपरेटर के इस ए वाले सिग्नल से मुझे जो भी सिग्नल मैं मेंशन करूंगा उसको क्या करना है, यहाँ पे उसको कनेक्ट करना है। उसके बाद सेकेंड इनपुट वाज माय डॉट बी कॉमा एंड डॉट वाई कॉमा।
अच्छा, ये चीज देखिएगा कि आपके पास इनिशिएशन के अंदर मैंने ए और बी के बाद तो कॉमा लगाया, लेकिन वाई के बाद कॉमा नहीं लगाया। तो जो भी आपका लास्ट सिग्नल होगा इनिशिएशन के अंदर, उसके बाद आप कॉमा इंट्रोड्यूस नहीं करते। आप फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द सेकंड लास्ट आप उसमें कॉमा से लगाते हैं, लेकिन फ्रॉम द इन द लास्ट सिग्नल आप उसमें कॉमा नहीं लगाते, क्योंकि आपके यहाँ पे वो ब्रैकेट क्लोज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तो हमने अपने डिजाइन को यहाँ पे क्या कर लिया, आपने इनिशिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें इस मॉड्यूल को किसी हमारे वेरिएबल्स के साथ हमें इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। जैसे अभी हमने डिजाइन में डायग्राम में देखा था कि मुझे अपने टेस्ट बेंच से कुछ इनपुट्स अपने डिजाइन के अंदर प्रोवाइड करने हैं, तो उसमें यकीनन मुझे यहाँ पे कोई कनेक्शन पोस्ट उसको देनी पड़ेगी। वो पोस्ट लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि भाई हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, टेस्ट बेंच के अंदर ये बात होती है कि हमें जो भी हमारे डिजाइन के इनपुट्स होते हैं वो हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं टेस्ट बेंच के अंदर विद द कीवर्ड ऑफ रेज। हमारे गेट के डिजाइन के अंदर कितने इनपुट्स थे, 2 इनपुट्स थे, तो उसको हम रेज के कीवर्ड के साथ यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, रेज ए कॉमा बी। ठीक है, अगर एक ही साइज के सिग्नल से तो आप एक साथ उसको मेंशन कर सकते हैं, अगर अलग अलग साइज के अगर सिग्नल है तो आप उसको अलग अलग मेंशन करते हैं। वो मजीद फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह वो हम उसको यूज कर सकते हैं। और हमारे डिजाइन का जो आउटपुट होता है उसको हम वायर के कीवर्ड के साथ यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जो इनपुट्स होते हैं उसको आप रेज के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं, और जो आउटपुट होते हैं उसको हम वायर के कीवर्ड के साथ यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हमने ए बी वाई सेम नाम्स रखे हैं, तो हम इसको ए के साथ ए को कनेक्ट कर देते हैं, बी के साथ बी को कनेक्ट कर देंगे, और वाई के साथ हम अपने वाई को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, आपने अपने मॉड्यूल को इनिशिएट कर दिया। नाउ द सेकंड स्टेप इज टू प्रोवाइड द स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस का क्या मतलब है कि स्टिमुलस के मैं अपने डिजाइन को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या वैल्यूज प्रोवाइड करूंगा, जिसके ऊपर मैं उसका बिहेवियर चेक कर रहा हूँ कि किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो उसके लिए हम प्रोसीजरल ब्लॉक्स को यूज करते हैं। प्रोसीजरल ब्लॉक्स के अंदर सबसे एक ब्लॉक जो ज्यादा यूज किया जाता है वो होता है इनिशियल ब्लॉक। ठीक है, इनिशियल बेसिकली का मतलब ये है कि आप जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डू वाइल का लूप हम यूज करते हैं। तो डू वाइल का लूप किस तरह परफॉर्म कर रहा होता है कि डू आपके पास एक बार चलता है, उसके बाद वो वाइल की कंडीशन को चेक करता है। इफ दैट गेट्स ट्रू तो वो अगेन उसको फंक्शनैलिटी को चलाता है, वरना तो वो एक ही बार चला के एग्जिट कर जाता है। तो इनिशियल बिगिन इज समथिंग एग्जैक्टली सेम लाइक डू, कि वो आपके पास एक बार हमेशा चलता है व्हेन वी आर रनिंग अवर प्रोग्राम। जब भी आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं या सिमुलेट कर रहे होते हैं तो वो हमेशा वंस एट वंस एक ही बार चलता है, तो हम उसको इनिशियल बिगिन के ब्लॉक को वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमें कोई चीज सिर्फ एक ही बार या वेरी वेरी स्टार्ट हमें उसको चलानी हो। अच्छा, इनिशियल बिगिन के अंदर आप अपने वैल्यूज को हम डिक्लेयर करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि भाई ए हमारा इनपुट है, तो यकीनन हमें उसकी कोई वैल्यूज देनी होगी। अच्छा, इसके बाद अभी ये जो सिंटेक्स हम यूज कर रहे हैं कि लेस देन इक्वल्स टू का जो हमने सिंटेक्स यूज किया है वो क्यों यूज किया है वो मजीद आप उसमें देखेंगे। फॉर द अभी हम ये समझ लेते हैं कि हम इसको सिर्फ वेरिएबल को असाइन वैल्यू असाइन करने के लिए इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ए को कोई वैल्यू असाइन करनी है। आई नो कि मेरा जो ए है वो सिंगल बिट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले वैल्यू असाइन करने से पहले आप क्या करते हैं कि आप उसको बताते हैं कि आप जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो आप उसको कितने बिट्स का वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो वी आर असाइनिंग अ सिंगल बिट नंबर, तो हम उसमें करेंगे 1 कि भाई ये मेरा जो नंबर है वो 1 बिट का है। ऊपर आपके पास प्रोस्टिफी। उसके बाद आप उसको बताएंगे कि किस नंबर सिस्टम से आपका रिलाई करता है। आइदर यू आर यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम या ऑक्टल डेसिमल सिस्टम। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम को देख रहे हैं, तो हम लिखते हैं बी। सो 1 बिट ऑफ बाइनरी। ठीक है, अच्छा, अब वैल्यू क्या असाइन करनी है। बाइनरी के अंदर हमें पता है कि सिर्फ 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, आइदर 0 और आइदर 1। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन वाज अकॉर्डिंग टू अवर ट्रुथ टेबल वाज 0 0। तो हम क्या करते हैं कि 1 बिट बाइनरी 0। इसी तरह हमें बी के ऊपर कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो बी हम बी को भी असाइन कर देंगे 1 बिट बाइनरी 0। अच्छा, इनपुट्स देने के बाद यकीनन उसको विजुलाइज करने के लिए मुझे बीच में कोई ना कोई हमें डिले इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ताकि हम कुछ सेकंड्स के बाद अपने जो सेकंड इनपुट देने वो हमें चेंज हो। अगर हम बिना विदाउट डिले अपने इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी वैल्यूज बार बार ओवरराइट हो जाएगी और आप हर पॉसिबल इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस को नहीं देख पाएंगे। सो व्हाट वी डू कि वी इंट्रोड्यूस समथिंग डिले। तो डिले इंट्रोड्यूस करने के लिए हम जो सिंटेक्स यूज करते हैं हैशटैग। बेसिकली वेरिलॉग के अंदर हैशटैग का मतलब होता है कि यू आर मेंशनिंग अ डिले। अब डिले हमें कितना देना है हम उसके सेकंड्स के ऊपर इसको मेंशन करते हैं, तो राइट नाउ वी आर यूजिंग 100 सेकंड्स ऑफ डिले।
कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 0 0 ए और बी को प्रोवाइड करना है, उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर 100 सेकंड्स, देन यू हैव टू प्रोवाइड द सेकंड इनपुट। ठीक है, सेकंड इनपुट हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर हम सेकंड कॉम्बिनेशन पे जाएं, पहले हमने 0 0 दी है, सेकंड कॉम्बिनेशन विल बी 0 1। उसके बाद थर्ड कॉम्बिनेशन पे हम आते हैं तो दैट विल बी 1 0, एंड देन फोर्थ कॉम्बिनेशन विल बी 1 and 1। ठीक है, सिंटेक्स का जरूर ध्यान रखिएगा कि हर एक नंबर्स के बाद हम सेमी कॉलन यहाँ पे जरूर लगा दें, विच टर्मिनेट द कमांड। ठीक है, बेसिकली ये टर्मिनेशन बताते हैं कि भाई आपने जो लॉजिक डिजाइन किए वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन की यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो यकीनन वो आपको सिंटेक्स एरर शो कर रहा होगा। और अगर आप जहाँ पे आप बिगिन यूज कर रहे हैं तो वहाँ को आप उसके बिगिन के बाद उसको एंड करना भी आपको बहुत ज़्यादा लाजमी है, कि आप बता रहे हैं कि भाई ये जो मेरा ब्लॉक है वो यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक उसका वो ख़त्म हो रहा है, तो ये हमें मेंशन करना भी ज़रूरी है। तो ये एंड आप ज़रूर लगाइएगा, एंड आप नहीं लगाएंगे तो आपको यकीनन वहाँ पे वो दोबारा सिंटेक्स एरर देना शुरू करेगा। अच्छा, यहाँ तक तो हमने 3 बातें कर ली कि हमने अपने वेरिएबल्स को टेस्ट बेंच में डिक्लेयर कर लिया, हमने उसके मॉड्यूल को इनिशिएट कर लिया जो हमें टेस्ट करना है, उसको हमें जो प्रोवाइड स्टिमुलस या जो मैं उसके कॉम्बिनेशंस हमें प्रोवाइड करने थे वो हमने यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दिए। अब लास्ट बात ये है कि हमें अपने सारे डिज़ाइन को विजुअलाइजेशन वाले फॉर्म में लाना है कि हम उसको किस तरह से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो उसके लिए हम अगेन इनिशियल वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनिशियल वाले ब्लॉक के अंदर हमें करना क्या है कि हमें एक फाइल बनानी होगी जिसके अंदर ये सारे वेरिएबल आपके पास मेंशन हो रहे हो। तो उसके लिए हम अपने कीवर्ड यूज करते हैं डम फाइल। ठीक है, डम फाइल क्या करेगा कि आप जो भी फाइल बनाना चाह रहे हैं आप उसको यहाँ पे नाम देते हैं कि भाई मुझे इस नाम की कोई एक डम फाइल बनानी है। जैसे अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर हम लॉग फाइल बनाते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे एक अपनी लॉग या डम फाइल बना रहे होते हैं। उस डम फाइल को हम नाम दे देते हैं dum.vcd। ठीक है, वीसीडी का मतलब ये होता है कि भाई यू आर फुल फॉर्म अगर हम देखें तो हम कहते हैं वैल्यू चेंज डम या वेरिएबल चेंज डम। जब भी कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो तो आपको उसको इस फाइल के अंदर डंप करना है। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये तो बता दिया कि भाई आपको फाइल किस तरह की बनानी है, लेकिन फाइल के अंदर कौन से वेरिएबल्स हमें डालने हैं वो हमें मेंशन करना लाजमी है, वरना वो खाली फाइल आपको डंप करके दे देगा, क्योंकि आपने उसको यही नहीं बताया कि इसको इस पूरे डिजाइन या टेस्ट बेंच में से कौन से वेरिएबल आपको आपको दम करके उसको शो करने हैं। तो उसके लिए हम दूसरा अपना कीवर्ड यूज करते हैं दम वार्स का। वार्स का मतलब वेरिएबल से होता है, फुल फॉर्म वेरिएबल, उसका शॉर्ट वार्स। ठीक है, हम यहाँ पे इसको दे देते हैं 0 कि भाई आपके पास जितने भी वेरिएबल्स है यू ऑल हैव टू डम इनटू अवर फाइल, जो हम dum.vcd की फाइल बना रहे होंगे। ठीक है, सो बाय सेइंग दैट सो, तो अगर आप देखें तो हमारी यहाँ पे जो टेस्ट बेंच की डिजाइनिंग है वो भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। टेस्ट बेंच के अंदर हम 4 चीज करते हैं। ठीक है, ये आपको हर बार हम जब भी टेस्ट बेंच बना रहे होंगे हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा जो हमारे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होंगे। सेकंड वर्क कि हमें अपने मॉड्यूल को इनिशिएट करना पड़ेगा जिसको हमें टेस्ट करना है। नंबर 3 हमें उसको कुछ ना कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड करने होंगे ताकि हम उसके आंसर्स को देख सकें। नंबर 4 हमें उसकी एक डम फाइल हमें बनानी होगी। ठीक है, सो बाय सेट सो हमने अपनी डिज़ाइन फाइल भी बना लिया और हमने अपनी टेस्ट बेंच भी बना लिया। नाउ हमें इसको चला के देखना है कि भाई इसको चलाएंगे किस तरह। सो आप अपने इसको ड्रैग अप भी कर सकते हैं टर्मिनल के लिए, या तो आप इसको यहाँ से टर्मिनल करके भी न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि क्या हम अपनी जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी जहाँ पे हमने ये फाइल्स बनाए हैं हम उसी डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल मौजूद है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी अपनी गेट्स की मैंने डायरेक्टरी फोल्डर बनाया था तो मैं अपने गेट्स के फोल्डर के अंदर ही अवेलेबल हूँ। अगर आप किसी और डायरेक्टरी के अंदर से आप इस कोड को चलाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर देना शुरू कर देगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस डायरेक्टरी में आपने फाइल्स बनाई है आप उसी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हों। ठीक है, डायरेक्टरी में अब सबसे पहले आप क्या कमांड लिखते हैं, हम आई वेरीलॉग की कमांड लिखेंगे जो हमने वीडियो 1 के अंदर इंस्टॉल किया था। सो फर्स्ट विल बी द कीवर्ड आई वेरीलॉग। उसके बाद हमें इसकी एक बीबीपी फाइल बनानी होती है जो हमारे डिजाइन को कंपाइल करके उसकी एक नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म की फॉर्मेट एक बना के प्रोवाइड कर देता है। तो हमें वो फाइल बनानी है, तो उसके लिए हम -o का फ्लैग यूज करते हैं। -o फ्लैग मीन्स आउटपुट फाइल। उस आउटपुट फाइल का कोई ना कोई नाम होगा तो हम out.bvp का नाम उसको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब हमें इसको ये बताना है कि आप हम बेसिकली अभी तक हमने जो चीज़ें बताई हमने बता दिया कि आपको आई वेरीलॉग का सिमुलेटर यूज़ करना है, उससे एक आउटपुट फाइल बनानी है जिस फाइल का नाम होगा out.bvp। लेकिन अब हमें ये भी बताना है कि आपको किस फाइल को कंपाइल करके ये फाइल बनानी है।
तो सबसे पहले हम अपनी टेस्ट बेंच का नाम देंगे। तो टेस्ट बेंच का नाम आपने जो भी रखा है, आप पर्टिकुलरली वही नाम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये बात जरूर याद रखिएगा कि आपको पहले टेस्ट बेंच ही मेंशन करनी है। अगर आप डिजाइन पहले मेंशन करेंगे तो वो हो सकता है कि आपको एरर थ्रो कर रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने टेस्ट बेंच का नाम लिख दिया कि भाई टेस्ट बेंच डॉट बी। उसके बाद उस टेस्ट बेंच के साथ हमारी कौन सी फाइल हमें टेस्ट करनी थी, वो थी डिजाइन। तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे डिजाइन डॉट बी। अच्छा, फाइल्स का नाम जो आपने रखा है यकीनन आप वही उसको प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये लिखने के बाद आप एंटर करते हैं। अगर ये आपके पास डायरेक्ट नेक्स्ट टर्मिनल पे चला जाता है तो इस मीन कि आपका जो डिजाइन है वो 100% करेक्ट है, उसके अंदर ना कोई सिंटेक्स एरर है, ना ही कोई किस्म का एरर है। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई एरर शो करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस अपने इनिशियल बिगिन टेस्ट बेंच में से ये कॉलन हटा देता हूँ और उसके बाद दोबारा ये कमांड चलाऊंगा, तो यू सी के उसने मुझे टेस्ट बेंच लाइन नंबर 18 के ऊपर उसने मुझे सिंटेक्स एरर का एरर शो किया है। ठीक है, अगर आप फाइल में देखें तो लाइन नंबर 18 है, लेकिन लाइन नंबर 18 में देखो तो कोई एरर नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंटेक्स से ही कंप्लीट किया, लेकिन उससे ऊपर वाली जो लाइन है वहां पे सिंटेक्स है। तो वो आपको या तो नेक्स्ट लाइन पे मेंशन कर रहा होगा या से उससे ऊपर वाली लाइन का एरर आपको उस पर्टिकुलर लाइन पे मेंशन कर रहा होगा। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे अपना सेमीकोलन लगा दूं, उसको सेव करके अगर दोबारा चलाऊंगा तो सी मेरा जो एरर था वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इसने out.bvp की फाइल जनरेट करके प्रोवाइड कर दी है। अब हमें इस out.bvp को डम फाइल में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसको विजुलाइज कर सके। तो आप इसके लिए क्या लिखते हैं, bvp out.bvp। ठीक है, out.bvp आपकी फाइल का नाम है और bvp हम इसके सिमुलेटर की कंपाइलेशन का कमांड है। अब जब रन करेंगे तो यूसी के उसने मुझे एक इन्फो प्रिंट करके दिया है कि बीसीडी इन्फो की डम फाइल ओपन फॉर आउटपुट, कि उसने जो भी मुझे डम फाइल बनानी थी उसे मुझे बना के प्रोवाइड कर दी है। और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे मुझे डम डॉट बीसीडी की फाइल भी यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अब मुझे अपनी डम डॉट बीसीडी की फाइल को देखना है कि किस तरह चल रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ तो चाहे तो आप यहाँ पे इसी टर्मिनल पे कमांड लिख सकते हैं या आप अपना न्यू टर्मिनल यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यानी कि ये प्लस की साइन आपको न्यू टर्मिनल ओपन करके उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आपको प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे हम लिखेंगे GTK वेब। बेसिकली GTK वेब इज अ सॉफ्टवेयर या विजुअलाइजेशन वाला सॉफ्टवेयर है जो आपको अपनी वेब फॉर्म्स को विजुलाइज करने के लिए हमें हेल्प करता है। आप जब इसको एंटर करेंगे यकीनन आपके पास इस तरह का एक विंडो ओपन होगी। उसमें आपको क्या करना है कि आपको फाइल पे जाना है, ओपन न्यू टैब। आपने जहाँ पे अपनी फाइल्स जो फोल्डर बनाया है आपको वहाँ पे जाके आपकी डम डॉट बीसीडी फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करना है। अब आप यहाँ देखें, अगर आप इसको ओपन किया है हमने तो ठीक है, आपके पास ये वीसीडी फाइल ओपन हो गई है। नाउ आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपके यहाँ पे टीबी लिखा हुआ है जो मेरे टेस्ट बेंच के मॉड्यूल का नाम था। और अगर ऐसे प्लस साइन को क्लिक करेंगे तो यू हैव द डट, जो हमने अपने डिजाइन के नाम को, गेट के डिजाइन को नाम दिया था कि डट। तो इस तरह अगर आपके मल्टीपल डिजाइन है तो आप इन सब डिजाइन को यहाँ पे आप उसको देख पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने टीबी के मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। जब हम आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑन द बॉटम आपको ये 3 सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा जो आपने वहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। तो अगर मैं वेरिएबल को देखना चाहता हूँ तो आपको या तो इसको डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे आउटपुट पे इस लेफ्ट राइट हैंड साइड पे विंडो पे शो होना शुरू हो जाएंगे। या आप इसको क्लिक करके ऑन द टॉप बॉटम से आप अपेंड भी कर सकते हैं, बोथ सिस्टम वर्क। या आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ से कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको इजी पड़ता है आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये विंडोज थोड़ी छोटी है तो इसको बड़ा करने के लिए आपके पास यहाँ पे जूम फिट होता है, तो आप इसको जूम फिट कर ले ताकि आप उसको पॉसिबल सही तरह से आप इसको विजुलाइज कर सकें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये वेव फॉर्म आई किस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली ये वेव फॉर्म एग्जैक्टली आपके ट्रुथ टेबल को बता रही होती है कि जिस तरह से आपने अपने इनपुट्स दिए हैं उसी तरह से ये वेव फॉर्म बन रही होती है। इन डिजिटल डिजाइन हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, तो हमारे पास जो वेव फॉर्म्स बनती है, हम अपने वैल्यू 1 के लिए द वेव फॉर्म शोज लाइक हाई। ठीक है, इस तरह की इसकी एक सिग्नल होता है कि जिसको हम मेंशन करते हैं कि हाई। और अगर लो है तो वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन चल रही होगी। तो अगर आपके पास इस तरह की वेव फॉर्म है कि जहाँ पे आपको एक अपर हाफ या अपर वैल्यू एक शो हो रही है, यानी कि आप उसको 1 कंसीडर करेंगे लाइक दिस। और अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन चल रही है तो हम उसको 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप अब देखें कि सबसे पहली जो मेरे इनपुट है वो मैंने क्या दिए थे, 0 एंड 0 अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट बेंच।
तो एंड गेट की फंक्शनैलिटी यही कहती है कि जब आपके पास दोनों जीरो हो तो आपके पास आउटपुट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन मीन्स द इनपुट इज जीरो। सो व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो माय आउटपुट इज आल्सो जीरो। अब हम सेकंड इनपुट पे जाएं कि सेकंड इनपुट अब देखेंगे तो हमने यहाँ पे 100 सेकंड्स हमें शो करता है कि हमने सेकंड इनपुट जो है वो 100 सेकंड्स के बाद हमने प्रोवाइड किया था। इसमें आप देखें तो आपके पास एक वेव फॉर्म बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इसमें दैट इज अ जीरो, और एक वेव फॉर्म आपकी अपर वैल्यू आपको शो कर रही है, ठीक है, एक आपको स्टेप शो कर रही है, तो उस स्टेप को हम कहते हैं 1। तो हमारा जो सेकंड इनपुट क्या था वो 0 1 था। सो वी नो जब हम 0 1 प्रोवाइड करेंगे तो हमारा एंड गेट हमें क्या प्रोवाइड करेगा, दोबारा 0 ही प्रोवाइड कर रहा होगा। देन वी मूव टुवर्ड्स अवर थर्ड इनपुट। थर्ड इनपुट हमारे पास क्या है, 1 0। तो आप देखें तो हमारे पास ए जो है वो 0 से 1 पे कन्वर्ट हो गया है स्टेप के ऊपर, और जो बी था वो हमारा स्टेप से दोबारा लो शो हो गया, यानी कि 0 की तरफ वो शो हुआ। तो 1 0 अगेन रिजल्ट इनटू अ 0। उसके बाद अगर हम फोर्थ इनपुट की बात करें, जब हमने दोनों इनपुट्स को क्या प्रोवाइड किया था, 1 1। सो यकीनन वो जो 1 है वो आपका कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि अपर हाफ ही था। उसके बाद बी के अंदर आप देखें तो आपके पास दोबारा स्टेप इंट्रोड्यूस हुआ है जिस शोज के आपके पास 1 इनपुट चल रहा है। सो बोथ इनपुट्स आर 1 माय आउटपुट विल आल्सो बी अ 1। तो आप देख सकते हैं कि आपका आउटपुट इसी तरह से उसने स्टेप लेके आपको 1 वैल्यू यहाँ पे शो की है। ये चीज़ आप वेव फॉर्म से भी देख सकते हैं और ये चीज़ आप यहाँ से भी अपने सिग्नल्स के वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वो नंबर्स आपको वैल्यूज उस पर्टिकुलर सिग्नल की वैल्यू आपको शो कर रहा होता है कि ये क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस शोज कि हमने जो हमारा डिज़ाइन एंड गेट हमें जो डिज़ाइन किया था वो परफेक्टली वर्क कर रहा है और 100% जिस तरह हम चाह रहे थे उसी तरह से उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे डिज़ाइन हुई भी है। ठीक है, आई विल होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आई विल प्रेफर कि आप इसके एंड गेट के बाद और गेट है या ज़ोर गेट है, मज़ीद जो गेट्स है आप उसकी प्रैक्टिस करके अपने इन कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।